A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a lots of the practical as well as the theoretical topic related to the chapter number 4, that is an admission of a new partner. In this chapter, we discussed how we will find out the new profit sharing ratio and sacrificing ratio on the admission of a new partner. After that, we discussed that is an accounting treatment of goodwill on the admission of a new partner. Number third, we discuss about the accounting treatment of reserve, specific reserves, accumulated profit, accumulated losses, as well as the accounting treatment of revaluation of assets and liability on the admission of a new partner. And we already saw lots of the practical portion related to the each and every topic given in the last few videos. In the last video, we already discussed the concept of hidden goodwill, because you know very well in some of the questions there is no information is given about the goodwill. So in this situation, we have to find out the amount of the goodwill with the help of the new partner's capital and new partner's profit sharing ratio. So now in this video, firstly we discussed one of the important questions related to the hidden goodwill. So the first question of today's video is question number 69A. Okay, so let's discuss about it, how we will find out the amount of goodwill when there is no information about the goodwill is given in the question. And the question number 69A says that Hemant and Nishant were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Their capital were 1,60,000 and 1 lakh respectively. They admitted Somesh as a new partner for 1/5 share in future profit. Somesh brought 1,20,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record the necessary journal entry for the above transaction on Somesh admission. So you can see that in this situation, there are two partners, Hemant and Nishant, and their profit sharing ratio will be a 3:2. And if you are talking about the capital of Hemant and Nishant, so amount of the capital of Hemant and Nishant after all adjustment will be a 1,60,000 and 1 lakh respectively. They admitted Somesh as a new partner. Somesh admitted in the firm as a new partner and brought capital rupees 1,20,000. So with the help of this information for 1/5 share of profit, so you have to first of all find out the goodwill of the firm and pass the necessary journal entries. So for passing the journal entries of the question number 69A, firstly we have to find out the amount of the goodwill with the help of the prescribed steps. So for the solution of the particular question, that is in question number 69A, firstly we prepare a working note related to the calculation of hidden goodwill. So you know very well how we will find out the hidden goodwill. The step 1 says that find out the total capital on the basis of the new partner's capital and the new partner's share of profit. So you can see that as RI है 1,20,000 and for 1/5 share of profit. So firstly हम लोग क्या find out करेंगे, total capital on the basis of new partner. So new partner के basis पे हम लोग पहले क्या निकालते हैं, total capital. So you can see that 1/5 शेयर के लिए जो नया पार्टनर है सोमेश, वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है that is in 1,20,000. So in this situation the total capital will be a
1,20,000 multiplied by 5th by 1, that is in 6 lakh. So this is the step 1. Now step 2, you know very well, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे. सो हाउ विल वी फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर? हेमंत, निशांत एंड सोमेश. हेमंत की कैपिटल है 1,60,000, निशांत की कैपिटल है 1 लाख एंड निशांत की कैपिटल है 1,20,000. सो द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म will be 3,80,000. So goodwill of the firm will be a difference between the step 1 minus the step 2. As you can see that. ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है. How we will find out the hidden goodwill of this situation? So goodwill of the firm will be a step 1 minus step 2. That is in 6 lakh minus 3,80,000. So the hidden goodwill of the firm is 2,20,000. Okay. So now as कि गुडविल की क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो गुडविल ला रहा है कि नहीं ला रहा है. ये पता है कि वो कैपिटल 120 ला रहा है, लेकिन सोमेश गुडविल ला रहा है कि नहीं ला रहा है ये बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सो 2,20,000 into 150 करेंगे. सो उसकी शेयर ऑफ कैपिटल कितनी आएगी? 44,000. सो 44,000 इज अ सोमेश शेयर ऑफ गुडविल. एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे. जर्नल एंट्री जो भी पास करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आ रहा है, गुडविल नहीं आ रहा है, क्योंकि गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. एंड यू नो वेरी वेल, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल नहीं लाता है, इन दिस सिचुएशन हिज करंट अकाउंट विल बी ओपन. सो क्या एंट्री होगी? पहली जर्नल एंट्री होगी इन द प्रॉपर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट. याद रखना है आपको, प्रॉपर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है. Okay, so date, particular, LF amount debit and amount credit. So the first entry will be a bank account debit to Shomesh capital. कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? 1,20,000. Okay. So now entry number 2 is, you know very well, Somesh does not bring his share of goodwill. In this situation, Somesh's current account will be open. Somesh current account will be open. And this amount of the goodwill, that is in 44,000, will be distributed between Hemant and Nishant. In which ratio? In their sacrificing ratio. Because क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल सा दिया है कि ओल्ड रेशियो जो है वो 3:2 है, और जो न्यू पार्टनर है सोमेश वो कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए. So it is a simple situation. And in this simple situation, the old ratio will be a sacrificing ratio. Sacrificing ratio will be 3:2. So 3:2 में क्या करेंगे? वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे the amount of the goodwill. So 3/5 में इसको बांट देंगे तो कितना आएगा? 44,000 3/5 2/5. So 44,000 का 3/5 4/5 कितना होगा? 44,000 divided by 5 कर लो, 8,800. So 0 0 17,600 0 0 4 2 26. Yes, so it is correct. So the goodwill, the journal entries are as follows in this situation is: first journal entry, bank account debit to Somesh capital, that is in 1,20,000, and number second is Somesh current account debit to H capital to N capital. So the amount of the goodwill which will not brought by the Somesh, it will be distributed between H and N in this sacrificing ratio. In this situation, the sacrificing ratio will be 3:2. आप चाहें तो निकाल के भी फाइंड आउट कर लें, न्यू रेशियो निकालना, फिर न्यू और ओल्ड के बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट करना. सो वी विल फाइंड आउट द करेक्ट sacrificing ratio. So this is the solution of the question number 69. Please note down in your copy properly, and thereafter we will move to the next question. So now let's move to the another questions related to the preparation of revaluation account, preparation of partners capital account, and preparation of balance sheet on the admission of a new partner.
Okay, so for this question you know very well we require lots of space, so let's see practice. Okay, so the question is question number 68. Question number 68 says that x and y are partner in the ratio of 5:3. X and y are partner in the ratio of 5:3 and their balance sheet are as follows: creditors 50,000, provident fund 15,000, workman compensation reserve is 40,000, whereas the capital is of X is 2,60,000, for Y is 1,35,000, bank is 29,000, data is 1,80,000, stock is 1,25,000, premises is 150, and advertisements expenses 116,000. On 1st April 2018, they admitted Jet as a new partner. So Jet admitted and gets 1/4 from X, 1/4 of a share, and from Y 1/3 of a share. So you can see that in this situation पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर आएगा तो कैपिटल गुडविल आएगा, गुडविल नहीं लाएगा या लाएगा लेकिन तब भी वो अमाउंट उस पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी. सो इन दिस सिचुएशन सबसे पहले हम निकालेंगे कि x कितना सैक्रिफाइस कर रहा है. s सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 अपने शेयर का यानी 1/5 का, whereas y सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 1/3 अपने शेयर का. सो x ने कितना सैक्रिफाइस किया 5/32, whereas y ने सैक्रिफाइस किया 3/24. So this is the sacrificing ratio between x and y. So the sacrificing ratio is 5:3. This is the sacrificing ratio 5 and 3. इसमें denominator को count sorry for that, denominator equal होना जरूरी है. So 532 और 324 ये इक्वल होना जरूरी है. इसको इक्वल करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि इनका जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं. तो इसका एलसीएम लेकर हमें वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो न्यू रेशियो विल बी you know very well the new ratio is old ratio minus sacrificing ratio. So x y z तीनों का न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं. x y z, x का ओल्ड कितना है 5/8, whereas y का ओल्ड है 3/8 और z को कितना मिलेगा जो x और y सैक्रिफाइस कर रहे हैं यानी 532 plus 324. ओके, सो 5/8 में से माइनस करिए 532, whereas the 338 is minus 324. So 8 and 32 LCM 32, 4 20 minus 5 is 15. यहाँ पे LCM क्या होगा 24, 3 9 minus 3 6, 5/32 6/24 और यहाँ पे 32 और 24 दोनों का LCM कितना होगा पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. 32 and 24 का LCM कैसे निकलेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर is 2 16 12 2 8 6 2 4 3 2 2 3 2 3 and last 3. So 2 2s are 4 2s are 8 to 16 32 32 and 3 96. So the LCM is 32 and 24 is 96. तो अगर आप चाहें तो 3 टाइम्स में यू कैन से 3 15 प्लस 24 में 4 टाइम्स में 12, सो 27/96. अब इस दोनों को भी 96 करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से 3 से, सो ये हो जाएगा 45/96, क्यों हो जाएगा 4 into 4 24/96. So the new ratio will be among x y z is 45 is to 24 is to 27. अब आप इसको 3 से और सिंपल करो, 3 9s are 3 8s are
50. So the new ratio will be 15:8:9. As you can see that in the answer of the question 68, the new ratio is 15:8:9. ये हो गया न्यू रेशियो, और उसके साथ साथ हमें क्या फाइंड आउट करना था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इसका एलसीएम कितना होगा, 96, 3 टाइम्स 15 और यहाँ पे 4, 12. So the LCM will be 3 4s are 315. So the sacrificing ratio between x and y is 5:4, whereas the new profit sharing ratio will be among x, y, z is new profit sharing ratio will be 15:8:9. So हम लोगों ने आधा काम कर लिया इस क्वेश्चन का, मतलब हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया और सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, Z is admitted and Z brings goodwill of the firm, goodwill is valued as 1,60,000. Z brings only 2/5 of his share as goodwill in cash and 1,50,000 as his capital. ये भी एक वर्किंग का पार्ट है कि Z जब आ रहा है तो कैपिटल कितना ला रहा है, वो कैपिटल ला रहा है टोटल अपना 1,50,000, लेकिन जो उसकी गुडविल है, सो गुडविल जेड की कितनी बनती है, जेड की गुडविल बनेगी, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,60,000 और उसका शेयर कितना बना है 15:8:9. So you can see that the goodwill is, इसका अगर आप एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, 932 आएगा. So 932 will be your, आप इसको सॉल्व करिए, $45,000. So Jet's share of goodwill is 45,000. How it will be find out? Total goodwill of the firm is 1,60,000 is given in the question. So Jet's share of goodwill is 932, निकालेंगे तो 45,000 आएगा. So it is in Jet's share of goodwill. But question में कंडीशन लगाया हुआ है, Jet brings only 2/5 of his share of goodwill. So Jet brings goodwill in cash. Jet ने goodwill कितना लाया 45,000 का, सिर्फ कितना, according to the question is 2/5, 18,000. Okay, so Jet does not bring goodwill, जितना goodwill लेकर आए तो आप उसका 3/5 भी निकाल सकते हैं कि अगर आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए कि अगर कोई पर्सन अपनी शेयर का 2/5 गुडविल ला रहा है तो कितना नहीं ला रहा होगा, 3/5 नहीं ला रहा होगा, 27,000. सो ये गुडविल वो लेकर आ रहा है, ये गुडविल वो लेकर नहीं आ रहा है. ये वर्किंग भी आपको काफी हेल्पफुल करेगी व्हाइल वी प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. सो दिस इज द वर्किंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 68. ओके, एंड नाउ द अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस क्वेश्चन, premises is to be increased to 2 lakh, stock by 5,000, creditors proved at 60,000, one bill for goods purchased having been omitted from the books, outstanding rent amounted to 12,000, prepaid salary 2,000, liability on account of provident fund was only 10,000, and liability for workman compensation claim was 16,000. So prepare revaluation account, capital account, whatever. So पहले हम उस क्वेश्चन में बनाते हैं revaluation account. So how we will prepare the revaluation account of this question? So that's in particular amount, particulars amount. So the first information given in this question is premises is to be increased to 2 lakh. Premises 2 लाख रुपए तक हो गया. So फायदा हो गया by premises. कितना फायदा हो गया 50,000. नंबर सेकंड, एंड स्टॉक बाय 5,000. और स्टॉक कितने से इंक्रीज हुआ 5,000 से. स्टॉक कह रहा है 5,000 से इंक्रीज हुआ, वेयर द प्रीमाइसेस 2 लाख रुपए तक इंक्रीज हुआ.
सो पहले प्रीमाइसेस था 150, अब उसकी वैल्यू होगी 2 लाख, तो 50,000 इंक्रीज हो गया। क्रेडिटर प्रूव दैट 60,000 whereas the creditor is given in the question 50,000, तो पहले क्रेडिटर थे 50, अब हो गए 60, तो ये तो लॉस हो गया हमारे लिए, 10,000 रुपए का लॉस हो गया। Now the next information is one bill for goods purchased have been omitted from the books. Okay. Next is outstanding rent amounted to 12,000, whereas the पहले outstanding कुछ given नहीं है, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़कर कितना हो गया 12,000 रुपए, यानी पहले कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट प्रीपेड सैलरी हो गई 2000, सो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। प्रीपेड सैलरी विल बी ऑफ 2000। नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड ओनली 10,000। प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी कितनी हो गई हमारी 10,000। पहले प्रोविडेंट फंड हमने कितना बना के रखा है 15,000, और अभी हमारी लायबिलिटी कितनी है 10,000, तो ये 5,000 रुपए का हमारा क्या हो गया प्रोविडेंट फंड पे फायदा है। सो प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता नहीं है, बात याद रखिएगा। तो प्रोविडेंट फंड पे फायदा कितना हो गया 5,000, कैसे? बिकॉज ऑफ पहले प्रोविडेंट फंड इज 15,000, अब उसकी लायबिलिटी से बन रही है 10,000, और उसके अलावा लायबिलिटी फॉर वर्क एंड कंपनसेशन रिजर्व 16,000, तो आपका रिजर्व कितना है 40,000 है, लायबिलिटी कितनी बन रही है 16,000, तो इसका मतलब ये है सिंपल सा कि जो रिमेनिंग वर्क एंड कंपनसेशन रिजर्व है उसे हम लोग क्या करेंगे इन द पार्टनर्स कैपिटल शीट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये लायबिलिटी ज्यादा होती रिजर्व से तो ये लॉस होगा, और लॉस को लोग पीएल शीट में नोट डाउन करते हैं। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी का और वर्क एंड कंपनसेशन क्लेम ज्यादा हो जाता है, ज्यादा मतलब which is greater than from the workman compensation reserve 40,000 से ज्यादा हो जाता, तो यहाँ पर हम लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन हमारी लायबिलिटी कम है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है, सो जो रिमेनिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, सो कंप्लीट हो गया रिवैल्यूएशन पार्ट हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे बैलेंस कर लेंगे। सो 50, 55, 57, 71, 61, 62, sorry for that, इधर भी 62 आ रहा है, बट डिफरेंस इज 22,000, तो 22,000 अगर हम माइनस करें 62 में तो हमारा प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन पे 40,000, और ये 40,000 कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा x एंड y, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो क्या है इनका 5th 8 और 3 8, 25 50। So this is a working note related to the question number 68 as well as the preparation of the revaluation account of this question. So please note down this solution in your copy properly. So after preparation of the revaluation account and with the help of the different working notes, let's be prepare the partners capital account. लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लेते हैं कि x y का ओल्ड रेशियो जो था वो 5:3 है, वेयर इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो x एंड y का है वो है 5:4, ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है x और y का, और न्यू रेशियो x y z के बीच में कितना है, x y z के बीच में न्यू रेशियो है आपका 15:8:9 ये है, और उसके बाद हमें और इन सारे वर्किंग्स की जरूरत नहीं है अभी, तो अब हमें जरूरत है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैसे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज देयर आर 3 पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? देयर आर 3 पार्टनर्स, x y z, particulars x y z. So you can see that when we solve the questions of the accountancy, so they require lots of space. Okay, so आप स्पेस को बहुत ही ध्यान रखिएगा क्योंकि विदाउट टेकिंग अ प्रॉपर स्पेस हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या नोट डाउन करेंगे, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल ऑफ x y z। x y z की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, x और y की 2,60,000,
1,35,000 जेड की कोई इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये कहा गया कि एक्स एंड एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑफ कैपिटल कितना लाया 1,50,000 तो बाई बाई करके। उसके बाद यू कैन सी दैट गुडविल कितना लाया 18,000 और कितना गुडविल नहीं लाया 227। दोनों ही गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी इन बिटवीन एक्स एंड वाई इन विच रेशियो इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो गुडविल लाया उसको पीएफजी के नाम से डील करेंगे और जो गुडविल नहीं लाया वो जेड के करंट अकाउंट से डील करेंगे। याद रखिएगा यहां पर दोनों ही केस अप्लाई हो रहा है, कुछ पैसा वो गुडविल ला रहा है, कुछ पैसा वो गुडविल नहीं ला रहा है। सो यू कैन सी दैट जितना वो गुडविल ला रहा है 18,000 उसे पीएफजी से डील करेंगे और जितना वो गुडविल नहीं ला रहा है 27,000 उसको किससे डील करेंगे करंट अकाउंट से डील करेंगे। और इसे किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स एंड वाई किस रेशियो में 5:4 9 10,000 8,000 15,000 12,000 उन्हें गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके अलावा रिवैल्यूएशन जब तो क्या हुआ था प्रॉफिट हुआ था तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिला था 25,000 15,000। ठीक, अब आते हैं बैलेंस शीट पे क्योंकि हम लोगों ने जितना कुछ करना था वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट जितना हमने वर्किंग्स में या जितना हमने बोर्ड पे वर्किंग किया था उसकी हेल्प से हम लोगों ने सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल में शो कर दी। अब आते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी। प्रॉविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन वो डिपेंड करता है कि लायबिलिटी कितनी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 40,000 जिसमें से हमारी लायबिलिटी कितनी थी ये 16,000 तो जितना बचा दैट इज 24,000 इसे हम लोग क्या करेंगे x एंड y में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन विच रेशियो इन देयर ओल्ड रेशियो एंड ओल्ड रेशियो इज x 5:3। याद रखिएगा pfg एंड जेड करंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग, मैंने इसके ऐसे लगाया है इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग। और जो इस तरह से एरो है इसका मतलब ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो। जो डैश तरह से उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे जो ब्रैकेट की तरह यूज हुआ है उसे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000 इज लेफ्ट क्योंकि 16,000 का तो क्लेम ही है तो सिर्फ 24,000 ही हम 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बांट दिया। अब क्या बचा सर, अब हमारा कोई भी अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द लायबिलिटी साइड बट इन द एसेट साइड यू कैन सी दैट द वन मोर डेफर्ड एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। इसको भी हम लोग क्या करते हैं इसको भी एरो लगाया इसका मतलब इसको भी हम लोग क्या करेंगे राइट ऑफ करेंगे between x and y in which ratio in their old ratio and what is the amount of advertising suspense 16,000 so it is 10,000 and 6,000 so ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया। so you can see that how we will prepare the partners capital account and there are lots of the adjustment are given in this question। अब हम लोग क्या करेंगे at last हम बैलेंस फाइंड आउट एंड जब x का यहाँ टोटल करेंगे सो वी फाइंड आउट x का कैपिटल है 3,25,000 यहाँ टोटल आ रहा है, इधर भी कितना होना चाहिए 3,25,000 10,000 ऑलरेडी है तो 350 आया। यस y में अगर आप देखें तो y का टोटल यहाँ पे आ रहा है 1,79,000 इधर भी आना चाहिए 1,79,000 डिफरेंस कितना आ रहा है 6,000 तो बचा 1,73,000। जेड में तो कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं क्योंकि वो नया पार्टनर है तो 150 और इधर भी कितना 150। सो ये बनकर तैयार हो गया द पार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 68। सो प्लीज नोट डाउन ओके। So you can see that how we will prepare the partners capital account and by we preparing the partners capital account हर चीजें all the things all the adjustment which are related to the partners capital account it will be included in the partners capital like opening capital new part capital brought by the new partner goodwill brought by the new partner or does not brought by the new partner in cash। so जो goodwill वो लाएगा उसे PFG से डील करेंगे एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और जो गुडविल नहीं लाएगा बस उसका नेम चेंज करना है
उसे हम PFG से डील नहीं करेंगे, उसे हम जेट करंट से डील करेंगे। सो 15,000 एंड 10,000 हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रीवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होता है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट में कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व हो या जनरल रिजर्व हो, उसे हम लोग उसके कंपनसेशन या क्लेम्स के बेसिस पे, लॉस के बेसिस पे एडजस्ट करने के बाद जो पैसा बचेगा उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डिवाइड करेंगे। एंड सिमिलरली इफ देयर इज एन एक्यूमुलेटेड लॉसेस or deferred revenue expenditure shown in the asset side of the balance sheet, so it will be also distributed by old partner in their old ratio, and thereafter we will find out the closing capital of XYZ. Okay, so you can see that how we will prepare the valuation account and partners capital account, and lots of the working like calculation of the sacrificing ratio and new profit sharing ratio, as well as find out the amount of the goodwill brought in cash or not brought in cash. So it is your homework to prepare a balance sheet of the question number 68, and if you have any doubt, so please ask me. Apart from this, if you have any suggestions and if you can kind of doubt, so please contact me personally. Okay, because due to the COVID situation, you know very well, and your online classes will be suspended till 15th May. Okay, so हम आपके साथ हैं, and if you have any kind of doubt, so please contact me personally. चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप पूछिए, एंड प्लीज सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चन गिवन इन योर बुक. ओके, सो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय.